till 2.10 we had already done. Now moving ahead, question number 2.11. Question is, why do gases always tend to be less soluble in liquids? Why do gases tend to be less soluble in liquids? As the temperature is raised. The question is based upon the Le-Chatelier principle. Okay. Now what is the solution this question? Dissolution is an exothermic process. Okay, dissolution of gases in liquids is an exothermic process. So exothermic process का क्या मतलब है कि the heat is released during this process. Okay, I write only the hints. You expand it. So this is now during the exothermic, it is an exothermic process. So it means lot of heat is released. Okay. So according to dissolution, okay, heat release. So delta H is negative. Now since according to Le-Chatelier principle, to undo the process, okay, the process जो है that when heat is absorbed means कि when the temperature is raised. Temperature raise का क्या मतलब है? We are providing the heat to the system. Okay. So to undo the change, the system का जो equilibrium है that will shift in the opposite direction. So heat is released. So it means the system will shift in the backward direction to, so that it will shift in the backward direction if we raise the temperature. So that's why when it will move in the backward direction, so dissolution will decrease. Okay, and gases will tend to be less soluble. Okay, so this is according to Le-Chatelier principle. On raising the temperature, the equilibrium will be shifted in the backward direction. So it means कि when it will move in the backward direction, so dissolution will decrease on raising the temperatures. So this will you will write on the basis of the Le-Chatelier principle, question number 2.11. Now question number 2.12. Okay, go state Henry law and mention some important applications. State Henry law and mention some important applications. Okay, this question जो है this can come in the form of the reasons also, क्योंकि application जो है इसकी उसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बनते हैं. तो अब हेनरी लॉ क्या है? देखो हेनरी लॉ को अगर हम एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ हेनरी लॉ, तो डायरेक्टली इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप लर्न करो. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, at the constant temperature, okay, at constant temperature, the partial pressure of the gas in its vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Is proportional to the mole fraction of gas in solution. तो if we write mathematically, तो P किसके इक्वल है?
P प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के, तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम हटाएं तो P इज इक्वल टू के एच एक्स, और वेयर के एच क्या है, के एच इज़ द हेनरी कॉन्स्टेंट। अब P प्रोपोर्शनल x के, तो व्हेन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो द ग्राफ विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। वैसे भी y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब y एक्सिस पे अगर हम पार्शियल प्रेशर लें, ओके, एंड x एक्सिस पे वी टेक द मोल फ्रैक्शन, सो दिस इज अ मोल फ्रैक्शन, तो ग्राफ विल गो फ्रॉम द ओरिजन एंड इट विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, और ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, दैट विल बी हेनरी कॉन्स्टेंट, ओके, के एच। अब यहाँ फॉर्मूले में देखो कि के एच किसके इक्वल हो गया, के एच जो है दैट इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स, ओके, तो के एच एंड दिस इज द, ये सॉलिबिलिटी की टर्म है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इज द टर्म फॉर सॉलिबिलिटी, तो इट मीन के एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो इसका क्या मीनिंग है कि जितना के एच बड़ा होता जाएगा, वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेज, देन द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, ओके, कम हो जाएगी। तो के एच एंड द सॉलिबिलिटी दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मोर द वैल्यू ऑफ द हेनरी कॉन्स्टेंट, लेसर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द गिवन सॉल्यूशन। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि यू हैव टू राइट द एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज ऑन द एरिएटेड रिंग्स की। अब एरिएटेड रिंग से मैं आपको समझा देती हूँ और फिर आप उसको लिखोगे। एरिएटेड रिंग्स में व्हाट हैपन्स, CO2 इज डिजॉल्व्ड, ओके, और CO2 इज ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन दीज ड्रिंक्स, जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं लाइक कैंपा कोला, योर थम्स अप एंड ऑल दीज ड्रिंक्स, कि इनमें CO2 जो है दैट इज डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर, ओके, एंड देन लिड जो है दैट इज कंटेनर का या जो बॉटल का लिड है दैटली टाइटली पैक्ड, मतलब उसको टाइट कर देते हैं when it is gas is dissolved in it. Now when we open the lid, okay, sometime you must have noticed कि when we open the lid तो gas fizzes out and effervescences come because the pressure is released when we open the lid, और pressure release होने से when pressure becomes equal to the atmospheric pressure तो pressure decreases, hence the solubility of the gas also decreases and gas comes out with the fizzing, okay. तो first application क्या हो गई, this is the first application. Now applications of Henry law. तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप क्या लर्न रखोगे, इन एरिएटेड ड्रिंक्स, और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कह देते हैं हम, एरिएटेड ड्रिंक्स, इन एरिएटेड ड्रिंक्स। तो CO2 जो है दैट इज CO2 इज डिजॉल्व्ड and bottles are sealed under high pressure. Bottles are sealed under high pressure so that more of the CO2 is dissolved in it. ये रीज़न है ना कि हाई प्रेशर करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज, तो CO2 विल बी डिजॉल्व मोर, ओके, सो दिस इज द, तो दैट्स वाई सॉफ्ट ड्रिंक्स में जितनी भी ये सोडा वाटर बॉटल्स हैं सब में CO2 को प्रेशर के साथ सील करते हैं। सेकेंड के स्कूबा डाइवर्स का, अब स्कूबा डाइवर्स जो हैं बिकॉज दे आर द, दे हैव टू गो डीप इनटू द दिस सी वाटर, तो अब जितना प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा उतनी सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस वुड इंक्रीज, ओके, और उतनी क्या है कि पानी के अंदर कि जब हम पानी, स्कूबा डाइवर्स हैव टू ब्रीथ अंडर द वाटर, breathe air at high pressure under the water. अब जब प्रेशर हाई है और पानी के अंदर दे हैव टू ब्रीथ, तो व्हाट विल हैपन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ब्लड इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी है, N2 एंड ऑक्सीजन इन ब्लड इंक्रीजेस। Now when they come out towards the surface, when they come over the surface, मतलब बाहर आते हैं जब, pressure decreases
because pressure becomes equal to the atmospheric pressure. So pressure decreases. So nitrogen which has been dissolved, okay, so nitrogen gas comes out and leads to the formation of bubbles in the blood. बबल्स इन द ब्लड, और इस सिचुएशन को मेडिकली वी कॉल इट बेंड्स, ओके। और ये बबल्स जो हैं, ओके, दीज आर कॉल्ड बेंड्स, which are very painful and fatal for life. Painful and fatal for life. Fatal for life means कि डेथ कॉजिंग है ये। तो ऐसे में इन बेंड्स को रिमूव करने के लिए, और जो गैसेस के टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं नाइट्रोजन के ब्लड में, उसको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव दीज बेंड्स या टू प्रिवेंट दीज बेंड्स and to prevent the toxic effects of nitrogen in our blood, so divers are always given the cylinders. Divers are given the cylinders filled with हीलियम, मतलब डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम से, तो कॉम्पोजिशन उसमें क्या हो जाएगी, 11.7% तो हीलियम रहती है उसमें, और 56.2% नाइट्रोजन है। मतलब नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है दैट इज़ डिक्रीज्ड बाय एडिंग हीलियम, एंड ऑक्सीजन जो है दैट इज़ 32% अप्रॉक्सीमेटली, ओके। सो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन, एंड दैट्स वाई सिंस द सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज़ मोर, हीलियम एक इनर्ट गैस है तो उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है नाइट्रोजन की, तो दिस कैन कम इन द फॉर्म ऑफ द रीज़न, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको। फिर इसी तरह से हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, okay, at high altitudes the partial pressure of oxygen is very less, okay, at high altitude partial pressure of oxygen is very less, okay, as compared to ग्राउंड लेवल। मतलब पहाड़ों पर हमेशा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द जो प्लेन एरियाज़ हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि ब्लड में जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, एट हाई ऑल्टीट्यूड्स solubility of oxygen is less in the blood. Oxygen, we know that oxygen is a gas which provides us energy because respiration takes place in the presence of oxygen. So when there is low blood oxygen, so then a person will feel weak, okay. So due to low oxygen level, a person feels weak, okay? Or medically this condition is known as anoxia, okay? So these are the three applications of Henry law as given in the NCERT, you can learn, okay? So this was the question number 2, okay, that is 6.11, today's question number 2, okay? Now we move to the next question. I think next is again numerical. Okay, देखो next question क्या है अब इसमें, some time is taken for rubbing and erasing the things, so then now question number
2.13. Okay, so this is the next question now. Question number 2.13. Partial pressure of ethane over a solution containing 6.156 into 10 raised to power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 raised to power minus 2 gram of ethane, okay, mass of ethane has been changed, okay, then what is the partial pressure of gas? Pressure of gas. देखो दिस क्वेश्चन जो है इट इज़ डायरेक्टली बेस्ड अपॉन हेनरी लॉ. तो हेनरी लॉ जो है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग देखो जो P है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, ये मास ऑफ द गैस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर. ओके, इनिशियली दिस वाज आल्सो द हेनरी लॉ. तो ये उसकी रिफॉर्म फॉर्म है जिसमें हमने मास की प्लेस पे उसके सॉल्युबिलिटी टर्म को लिया. ठीक है, तो m इज इक्वल टू के पी. तो ये उस फॉर्मूले पे बेस्ड है. यहाँ पे m हमें गिवन है. फर्स्ट हमें देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन एंड द मास इज गिवन. तो मास अगर इसका 6.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 है तो k इंटू 1. तो k की वैल्यू यही आ गई मेरे पास. तो k इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 ग्राम पर बार. ओके, सो दिस इज द k वैल्यू. अब k की वैल्यू अगर ये, अब सेकेंड केस में ही हैज़ अगेन गिवन द मास एंड ही हैज़ आस्क्ड द पार्शियल प्रेशर. तो p हमें निकालना है. तो अब सेकेंड केस में m इज इक्वल टू अगेन k इंटू पी. अब m इज गिवन 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. k इज गिवन ये ग्राम में और k हमने कैलकुलेट किया 6.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 ग्राम पर बार. ओके, और इंटू पी हमें कैलकुलेट करना है. तो p किसके इक्वल आ गया? p इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 ग्राम पर बार. तो बार ऊपर चला जाएगा. ओके, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ p. ओके, तो यहाँ से अब p की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है. तो p की वैल्यू जब आप इसको डिवाइड करोगे एंड इट विल कम आउट टू बी, value of the p will come out to be approximate 7.6 bar. Okay, so this was question number 2.13. Then we move to question number 2.14. अब 2.14 जो है अगेन थ्योरी का क्वेश्चन है. Question number 2.13 we have done. 2.14. What is meant by positive and negative deviation from Raoult's law, and how the sign of delta H mixing related to positive and negative deviations from Raoult's law. Okay, देखो positive and negative deviation. Raoult's law जो है देखो solution which obey the Raoult's law. 2.14. Okay, that we are doing now. Question number 2.14.
2.14 में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, फिर आप इसको डिटेल्स में लिखना। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है कि व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, तो मिक्सिंग के बाद जो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द टू सॉल्यूशंस या टू लिक्विड्स में, जब नए कैनमा बॉन्ड्स बनते हैं, तो अगर लेट इट बी एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है, तो ए की जो बॉन्डिंग है दैट इज ए, बी में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बी, ओके, एंड व्हेन दे इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स, तो देन द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन ए बी, ओके। तो इफ ए बी बॉन्ड्स आर वीकर एज कंपेयर टू ए एंड बी बॉन्ड, ओके, तो जब ये वीकर है तो देन व्हाट विल हैपन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड, ओके, तो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स विल बी लोअर, और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होंगे तो इनके जो वेपर प्रेशर है वो हाई होंगे एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विल शो आइडियल कैन में दिस पॉजिटिव डेविएशन, ओके। तो वो हमें, तो जो इस टाइप के सॉल्यूशंस हैं उसके से हमें क्या आएगा, दैट इज़ द पॉजिटिव डेविएशन विल कम। तो जैसे पॉजिटिव डेविएशन अल्कोहल एंड वाटर है, ओके, ये अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, वाटर ऑल्सो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो व्हेन द बोथ आर मिक्स तो दे विल गिव द पॉजिटिव डेविएशन। तो देन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो, ओके। तो ये इसका, और नेगेटिव डेविएशन में व्हेन द जब दो आप लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो ए की बॉन्डिंग और बी की बॉन्डिंग, ओके, दे आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू व्हेन दे इंटरेक्ट अमंग, तो ए बी की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ओके, ए बी की बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू ए एंड बी, ओके, तो उसको हम नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। तो मैं उसका भी शॉर्ट में आपको थोड़ा बता देती हूँ, ओके। तो कि ए और बी, ओके, और ए बी जो बॉन्डिंग है दैट इज स्ट्रॉन्गर, ओके, एज कंपेयर टू ए एंड बी। जब ये स्ट्रॉन्गर है तो फिर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर, boiling point will be higher, sorry, okay, boiling point will be higher, and when boiling point will be higher then vapor pressure will be lower, okay? तो इसको ऐसी डेविएशन को हम क्या कहेंगे कि दैट इज़ द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो अब नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन इन दोनों के आपने साथ में ग्राफ ड्रॉ करने हैं, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में है ये, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ओके। तो दिस इज़ द, अब इसमें फिर डेल्टा एच मिक्सिंग, अब डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव के लिए इट इज़ पॉजिटिव एंड डेल्टा एच मिक्सिंग फॉर नेगेटिव इज़ नेगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए, फॉर पॉजिटिव डेविएशन mixing is equal to positive, okay, and for negative deviation delta H mixing is equal to negative, okay. This is for the deviation, okay. बाकी आप टेक्स्ट में आई हैव गिवन सो मेनी दिस वीडियोज ऑल्सो फॉर दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, तो आप टेक्स्ट से यू लर्न दिस कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है और नेगेटिव डेविएशन क्या होती है, okay. तो पॉजिटिव का आई टोल्ड यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ द this alcohol and water, okay, they show the positive deviation। और इसी तरह से अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इस तरह के वो देते हो तो ये नेगेटिव डेविएशन है, okay। तो क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, दे ऑल्सो फॉर्म द नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इस तरह से तो मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। एस्केपिंग का मतलब ही ये है कि जितना ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कि उतनी उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, और अगर बॉन्ड वीकर होगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी विल बी मोर, ओके। और जितनी ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, इजीली बॉन्ड ब्रेक करेगा, उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा कि दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट लोअर, कम टेम्परेचर पे बॉइल कर जाएगा, ठीक, क्योंकि बॉन्ड वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर, एंड इस केस में देखो इसमें बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा,
और जब बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा तो वेपर प्रेशर विल बी हायर। और दोनों के आप ग्राफ ड्रॉ करो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2.14। फिर क्वेश्चन नंबर 2.15। Again a numerical, an aqueous solution of 2%, an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है विच हैज़ बिन मिक्सड के और प्रेशर गिवन है, तो इट मीन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से और प्रेशर गिवन है कितना एग्जर्ट कर रहा है। तो द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, तो क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? अगर हम इसमें क्या रिलेटिव लोअरिंग का देखें तो क्या फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग का? तो रिलेटिव लोअरिंग का प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन। पी नॉट का क्या मतलब है कि द प्रेशर इन द प्योर फॉर्म माइनस पी सॉल्यूशन, जब प्योर सॉल्वेंट है तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, ओके, इज इक्वल टू एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, अब मास हमें गिवन है ओके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का और उसका मोलर मास नहीं पता हमें। तो 2% का क्या मीनिंग है कि 2 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन 98 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर का मास कितना है? मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 98 ग्राम। तो जब हमें मास पता है वाटर का तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो, अदरवाइज हमें इसका मोलर मास पता ही है। ओके, तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमें गिवन है 1.004, ओके, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि इसने बार में गिवन है तो हमें इसको भी यहाँ पर बार में ही लेना पड़ेगा। तो बार में क्या वैल्यू होती है? 1.013 बार। ओके, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। सो दिस इज द ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब कि ये पी नॉट की वैल्यू है आपकी। ओके, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.013 माइनस ऑब्जर्व्ड प्रेशर 1.004 divided by 1.013 is equal to xb मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब हो गया? NB डिवाइडेड बाय NB प्लस Na। ओके, अब सिंस द मास ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस तो NB को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में इग्नोर करेंगे। ओके, तो इग्नोर NB ऑफ डिनोमिनेटर।
ये आपने याद रखना है। Na डिनोमिनेटर। तो जब ये करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बी, तो क्या हो जाएगा WB अपॉन MB, डिवाइडेड बाय Na। तो डिवाइडेड बाय Na का क्या हो जाएगा MA डिवाइडेड बाय WA। तो A इज़ हेयर सॉल्वेंट और B क्या सॉल्यूट है। अब यहाँ से आप माइनस करो, तो 1.013 में से 1.004 माइनस करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.009। okay, 0.009 डिवाइडेड बाय 1.013। okay, ये किसके इक्वल आ जाएगा WB 2/MB जो हमें कैलकुलेट करना है, और मास कितना है इसका, दैट इज़ ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर 18, और मास कितना है उसका WA 98। ओके, तो ये आ गया 2 बाय दिस, एंड अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.013 इंटू 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 0.009 इंटू 98 इज इक्वल टू MP। ओके, इस डेसिमल से ये हटा दो। ओके, 9 2 ज़ार 18, 249 पे गया। okay, तो ये कितना आ गया 13 इंटू 2 0.013। ओके, 1.013, तो ये आ गया 2026 क्योंकि डेसिमल तो हट गया, डिवाइडेड बाय 49। ओके, 2026 डिवाइडेड बाय 49। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 41.3 ग्राम। ओके, अप्रॉक्सीमेट 50 हो गया ना, तो 50 इंटू 40 तो 2000, तो 2000 तो 40 के आसपास यहाँ सर आना चाहिए था, 49 है डिवीज़न में, तो 41.3 ग्राम। ओके, सो दिस इज़ द, पर आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि डिनोमिनेटर में हम NB को इग्नोर करेंगे क्या, अदरवाइज क्वेश्चन विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मास जो है इट इज़ वेरी स्मॉल, तो मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम होगी, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स। ओके, दैट विल बी वेरी लेस, तो that's why. So this was question number 2.15. Okay. Then we move to the next. Now question number 2.16. Heptane and octane form an ideal solution. So at 373 Kelvin, vapor pressure of heptane and octane, vapor pressure of heptane and octane are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of the mixture? Okay, what will be the vapor pressure of mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? $35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ओके,
तो ये अब हमें गिवन है। अब इसमें देखो, अब अगर हम दोनों के क्या कैलकुलेट कर लें कि वी नो दैट अगर हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लें इनका कि व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर से वी कैन कैलकुलेट देयर दिस टोटल प्रेशर। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर प्रेशर ऑफ द गैस गिवन है हमें कि वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास की, दैट इज पार्शियल प्रेशर पी ए इज इक्वल टू ओके पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट पी नॉट इंटू एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जब दोनों का हमें पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ गया फिर वी कैन कैलकुलेट द टोटल। तो पी टोटल हमारे पास हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो पी ए इसके इक्वल है और पी बी किसके इक्वल है, पी नॉट इंटू एक्स, इसमें एक्स ए इसमें एक्स बी। तो इसका मतलब हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। अब हेप्टेन, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H16। ओके, दिस इज द हेप्टेन। तो आप पहले देखो हेप्टेन क्या हो गया, हेप्टेन मीन 7 एट, एल्केन है तो C7H16 और ऑक्टेन C8H18। तो यहाँ से आप पहले मोलर मासेस निकालो। तो 12 7s आर 84, 84 में 16 ऐड हो गए तो मोलर मास हो गया इसका में लिख दिया 84 प्लस 16 100। ओके, और इसमें 14 और ऐड कर दो तो मोलर मास हो गया 114। क्या होमोलोगस सीरीज़ के अकॉर्डिंग कर लिया हमने। नेक्स्ट मेंबर है 12 8 सा 96, 96 में 18 ऐड करोगे तो 114। ओके, सो दीज आर द। अब यहाँ से हम पहले मोल्स ऑफ हेप्टेन कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने हैं, मास ऑफ द हेप्टेन इज 26, तो 26 बाई 100, तो दैट इज इक्वल टू 0.26। ओके, फिर मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितने हैं, 35 डिवाइडेड बाय 114। ओके, तो जब 35 डिवाइडेड बाय 114 आप इसको डिवाइड करो तो अप्रॉक्सीमेट 0.31 आएगा। ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन व्हेन वी नो द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो अब एक्स ए किसके इक्वल आ गया, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो एन ए आपका है 0.26 डिवाइडेड बाय 0.26 प्लस 0.31। तो ये किसके इक्वल आ गया, इट विल कम आउट टू बी 0.45। ओके, अब जब ये 0.45 है तो एक्स बी किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 0.45, तो दैट इज इक्वल टू 0.55। ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट पी ए। तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर पी नॉट, पी नॉट इज हेप्टेन का है 105.2 किलो पास्कल, तो 105.2 इंटू 0.45, ये तो पी ए आ गया। और इसी तरह पी बी कितना हो जाएगा 46.8 इंटू 0.55, ये आपका किलो पास्कल में आएगा। 105.2 इंटू 0.44 तो ये 0.45 और 46.8 इंटू 0. दिस, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट विल बी द अवर आंसर्स। तो लेट अस सी, इनको मल्टीप्लाई करो आप। ओके, तो 105.2 105.2 इंटू 0.45, तो 0.45, तो दैट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेट 47.34। ओके, और 46.8 इंटू इसको करते हैं सारे को अगर, तो 46.8 इंटू 0.55, ओके, तो 25.74, तो दैट विल बी पी ए इंटू पी बी। अब पी टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ओके, दैट इज इक्वल टू 47.34 प्लस 25.74, तो ये कितना आ गया 8 10
एक 73.08 किलो पास्कल. So this is the answer, okay, for this question. well always you have to remember आपने मोल फ्रैक्शन जो है इसमें हम चैप्टर में बार बार यूज़ हो रहा है, तो लर्न द फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट एप्लीकेशन है. ओके, सो टिल 2.16 विल हैव फिनिश नाउ. तो नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, तो आप 2.16 तक अपने क्वेश्चंस को रिवाइज़ करो, और रिवाइज़ करके एंड देन यू कैन मैं इनको बार बार करो, सो दैट यू मे बी वेल वर्स विद ऑल द क्वेश्चंस. की छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो यू शुड नो दैट हाउ वी हैव टू डू. ओके.